Hello everyone. I welcome you all in today's session of environment. Open your environment textbook and open page number 28. Last time I gave you one activity to make a house. So I hope you have made that house. Now today, see here on page number 28, draw a picture of your house in your notebook and color it. So children, you have to draw a picture of house and then fill color in it. So in this box, you have to draw the picture of house and color in it. This is your homework you have to do at home. Next is think and write. Who all live with you in your house? You have to write the answer that who all live with you in your house. There is a family with you. In your family, how many members are there? So you have to write about all those family members. For example, grandfather, grandmother, father, mother, sister, brother, uncle, aunt. So, whoever family members are there in your family, those you have to write here. So children, आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है वो आपको यहाँ पे लिखना है. फॉर एग्जाम्पल ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी. उसमें से जो भी आपकी फैमिली में आपके साथ रहता है वो आपको यहाँ पे लिखना है. नेक्स्ट इज छोटू डिवाइडेड द पाइप इनटू डिफरेंट पार्ट्स. Write the different parts of your house. See children, last time we show that Chotu started living in a cement pipe. So he divided the cement pipe in different parts of house. For sleeping, to make food, to receive guests. Okay. So like this, you have to write the different parts of your house, like drawing room, kitchen, study room, bedroom, bathroom, storeroom, garden and veranda. Next, think and tell. How much time in a day do you spend in each part of your house? आप पूरे दिन में अपने घर में जो भी पार्ट्स है वो सभी पार्ट्स में कितना कितना टाइम स्पेंड करते हो वो यहाँ पे लिखना है. लाइक drawing room 2 hours, kitchen 2 hours, bathroom half an hour, bedroom 8 hours, study room 3 hours and veranda 1 hour. Like this you can write. Next is there any part of your house where a particular member of your family spends more time? आपके घर में कोई ऐसा पर्टिकुलर पार्ट है कि जहाँ पे कोई फैमिली मेंबर पूरा दिन या फिर सबसे ज़्यादा टाइम वहीं पे स्पेंड करता हो?
Here I give you the answer. Yes, my grandparents spend more time in the drawing room and my mother spends more time in the kitchen. आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी, वो सबसे ज़्यादा टाइमिंग कहाँ पे रहते हैं? ड्राइंग रूम में. So you can write it. And your mother spends more time in the kitchen to make food for you, to make delicious dishes for you. Okay, so you can write like this. Next is there any part of your house where a particular family member never goes or goes for a short time? आपके घर का कोई भी पार्ट ऐसा है कि जहाँ पे कोई फैमिली मेंबर कभी जाता ही नहीं हो या फिर सबसे कम समय के लिए जाता हो? सो यस, देयर इज अ पार्ट लाइक दिस. विच पार्ट? किचन. एंड हु डजंट गो देयर और हु गोज फॉर शॉर्ट टाइम? योर फादर और ग्रैंडफादर. सो राइट इट. यस, my father and grandfather do not go into the kitchen. Here we have completed our answers. Now next is something reading is here. You must have seen that some animals also live with us in our houses. Some of these animals live with us because we want them to, while some are uninvited. Children, various animals live with us in our house as guests. Some of these live with us because we want them to. For example, cats, parrots, etc. Whereas some animals are uninvited and enter our homes without our permission. For example, cockroaches, lizards, rats, spiders, etc. There are so many animals which live in our house. They are like guests in our house. Few animals are like that we want that animals with us. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि उस एनिमल्स को हमें अपने साथ घर में रखना पसंद है, जैसे कि बिल्ली हो, कुत्ता हो, तोता हो, ये सब, कैट्स, डॉग्स, पैरट्स, ये सभी को हम अपने साथ अपने घर में रखना पसंद करते हैं. एंड सम एनिमल्स आर अनइनवाइटेड एंड दे कम टू आवर हाउस विदाउट आवर परमिशन. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं हमारी परमिशन के बगैर, और वो अनइनवाइटेड है, हमने उसे कभी अपने घर में रहने के लिए इनवाइट नहीं किया है, फिर भी वो हमारे घर में रहते हैं, जैसे कि कॉकरोच, लिजर्ड्स, रैट्स, स्पाइडर्स. ये सभी जो एनिमल्स हैं वो हमारे घर में हमारी परमिशन के बगैर हमारे साथ रहते हैं. नाउ you know children, if you see in your house there are so many animals in your house, you just check your house, so many are like that. Now see on the next page, on page number 29, let's sing this riddle. Some riddles are given here that we have to read. होम स्वीट होम, यहाँ पे लिखा है होम स्वीट होम. मे बी यू हैव सीन दिस बोर्ड ऑन सो मैनी हाउसेज. कई बार कई घर के ऊपर होम स्वीट होम ऐसा लिखा हुआ होता है. और
कुछ लोग अपने घर में ऐसी प्लेट लगाते हैं, होम स्वीट होम ऐसा लिखकर। नाउ हियर, यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस, बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर? See here, a boy is sitting here. He is saying that वो अपनी मम्मी को कह रहा है कि मम्मी, आप हमेशा ऐसा कहते हो कि ये घर सिर्फ हमारा है, लेकिन मैं कैसे बिलीव करूं कि ये घर सिर्फ हमारा है, जबकि इस घर में हमारे साथ कई और भी रहते हैं। Look mother, how these mice are all playing catch catch together, and look how these mosquitoes fly. Anyhow peaceful lies the happy spider. ये बच्चा कह रहा है कि देखो मम्मी, यहाँ पे ये जो माइस है वो एक दूसरे के साथ कैच कैच खेल रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं। यहाँ पे ये बच्चा माइस यानी कि चूहे एक दूसरे के साथ कैच कैच यानी कि पकड़ा पकड़ी खेल रहे हैं। एंड लुक हाउ दिस मॉस्किटोज फ्लाई। और ये मॉस्किटोज यानी मच्छर कैसे उड़ रहे हैं हमारे घर के अंदर। एनी हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर। हम अपने घर में देखें तो अभी मम्मी रोज क्लीन करती हो, फिर भी घर पे जो कॉर्नर्स होते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं हमें स्पाइडर्स दिखाई देते हैं। तो ये बच्चा बोल रहा है कि स्पाइडर भी कितनी शांति से खुश होके वहाँ पर बैठा हुआ है। एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो, एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक एंड्स ऑल मार्चिंग इन अ रो। और देखो मम्मी, ये जो लिजर्ड्स है कैसी है, लेजी है। बच्चे ने लिजर्ड्स को लेजी लिजर्ड्स कहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही स्लोली एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। और ये काली चींटियां एक रो में मार्चिंग कर रही है, यानी कि आप अगर चींटियों को देखोगे, ब्लैक एंड्स को देखोगे, तो वो हमेशा एक लाइन में ही जाती है एक दूसरे के पीछे। तो ये बच्चा बोल रहा है कि वो एक रो में एक लाइन में मार्चिंग कर रही हो, परेड कर रही हो, ऐसा लग रहा है। और वो भी हमारे घर में शांति से मार्चिंग कर रही है। एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड, द बर्ड्स आर ऑल पैकिंग अबाउट, जस्ट लाइक व्हेन माय सिस्टर एंड आई समटाइम्स फाइट, क्वारल एंड शाउट। अगर आप बाहर जाकर देखो तो ये बर्ड्स एक दूसरे के साथ खाना खाने के लिए लड़ रहे हैं। जैसे कि मैं अपनी सिस्टर यानी कि बहन के साथ कई बार फाइटिंग करता हूँ, कई बार लड़ता हूँ, चिल्लाता हूँ, ऐसे ही ये बर्ड्स बाहर कर रहे हैं, ऐसे ही चिल्ला रहे हैं। That is why I say, dear mother, don't think this house is only ours. It's dear to us and all who live here and have been living for many years. और ये बच्चा अपनी मम्मी को कह रहा है कि मम्मी, इसीलिए आप ये सोचना बंद कर दो कि ये घर सिर्फ हमारा है। ये घर यहाँ पे रह रहे सबका ही है, जो कई सालों से हमारे साथ रह रहे हैं। Do you know rats have poor eyesight but have excellent sense of smell, touch and taste? Children, do you know? Here some facts are given about rats. That rats have poor eyesight.
उनकी देखने की जो शक्ति है, आंखें बहुत ही कमज़ोर होती है, लेकिन उनके पास बहुत ही एक्सीलेंट सेंस होती है स्मेलिंग, टचिंग और टेस्टिंग की। वो चीज़ों को स्मेल करके, टच करके या टेस्ट करके फटाफट से पहचान लेते हैं। सो रैट्स आर लाइक दिस। डिड यू एंजॉय दिस रीडल? यस। नाउ turn the page. See page number 30. Draw pictures of any two animals that live in our house. Write their names below the pictures. See children, here in these two boxes, you have to draw the pictures of any two animals which live with us in our house. यहाँ पे जो 2 बॉक्सेस दिए गए हैं, उस 2 बॉक्सेस में आपको 2 एनिमल्स के पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं, उसको कलर करना है। कौन से एनिमल्स की? जो एनिमल्स हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, ऐसे एनिमल्स का पिक्चर ड्रॉ करके उसमें कलर करना है। और उसके नीचे जो स्मॉल बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर आपको पिक्चर का नेम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लीजर्ड का पिक्चर ड्रॉ किया तो नीचे लीजर्ड ऐसा लिखना है। अंडरस्टूड दिस मच? सो योर होमवर्क इज टू ड्रॉ द पिक्चर ऑन पेज नंबर 30 एंड ड्रॉ द पिक्चर ऑफ हाउस ऑन पेज नंबर 28. Have a nice day. Goodbye.